भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 श्लोक संख्या 8। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 25th चैप्टर वर्स नंबर 8। मोबाइल्स में देख सकते हैं आप 3:25:8। तस्य त्वं तमसो अन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगं सच्चक्षुर्जन्मना अन्ते लब्धं मे त्वद् अनुग्रहात्। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। रिपीट करें। तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्। आदर तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्य पारगम् सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते। शब्दार्थ तात्पर्य अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कामूर्ति अभय चरणारिंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। और क्योंकि मेरे सामने अभी इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। तस्य दैट त्वं यू तमसः ignorance अंधस्य darkness दुष्पारस्य difficult to cross adya now पारगम crossing over सत transcendental चक्षुः eye जन्मना of births ante at the end labdham attained me my but anugrahat by your mercy. Translation. Your Lordship is my only means of getting out of this darkest region of ignorance, because you are
my transcendental I, which by your mercy only I have attained after many, many births. This verse is very instructive since it indicates the relationship between the spiritual master and the disciple. The disciple or conditioned soul is put into this darkest region of ignorance and therefore is entangled in the material existence of sense gratification. It is very difficult to get out of this entanglement and attain freedom. But if one is fortunate enough to get the association of a spiritual master like Kapila Muni or his representative, then by his grace one can be delivered from the mire of ignorance. The spiritual master is therefore worshipped as one who delivers the disciple from the mire of ignorance with the light of the torch of knowledge. The word Paragam is very significant. Paragam refers to one who can take the disciple to the other side. This side is conditioned life, the other side is the life of freedom. The spiritual master takes the disciple to the other side by opening his eyes with knowledge. We are suffering simply because of ignorance. By the instruction of the spiritual master, the darkness of ignorance is removed, and thus this disciple is enabled to go to the side of freedom. It is stated in Bhagavad Gita that after many, many births, one surrenders to the Supreme Personality of Godhead. Similarly, if after many, many births, one is able to find a bona fide spiritual master and surrender to such a bona fide representative of Krishna, one can be taken to the side of light. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Uttappada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vikas Swami Nitinare Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinare Namaste Saraswate Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Tasya tvam tamasondhasya dushparasyaadya paragam sachakshur janmanamante labdham me tvat anugrahat. Your Lordship is my only means of getting out of this darkest region of ignorance because you are my transcendental I, which by your mercy only I have attained after many, many births. हरे कृष्णा। तो आज रामनवमी का महा महोत्सव है और कई भारत में कई क्षेत्रों में कल हो गई और इस्कॉन के जो कैलेंडर है उसके अनुसार जो वैष्णव कैलेंडर है आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कई अलग अलग विषयों के कारण। ये जो राम जी का चरित्र है, जो भी जीवन है, जीवन काल है और जो रामायण के सारे चरित्र हैं, सबसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बाद में उनकी चर्चा करेंगे दोपहर को और शाम को। तो सबसे कुछ ना कुछ हम सीख ले सकते हैं और ये भी सीख ले सकते हैं कि क्या नहीं करना है जीवन में। जैसे जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं,
उनसे हम ये सीख सकते हैं कि ऐसा नहीं बनना है, तो वो सब भी बहुत ज़रूरी होता है, उनसे भी लेसन लेना। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो पूरी जो रामायण है उसमें जो बहुत ही आइडियल जो कैरेक्टर है राम जी का, लक्ष्मण, भरत इत्यादि, उसमें एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट शब्द है जो हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं वो है प्रपत्ति। प्रपत्ति का अर्थ है सरेंडर, शरणागति। राम का अपने पेरेंट्स के प्रति, गुरुजनों के प्रति सरेंडर, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का अपने भाई के प्रति सरेंडर, सीता का राम के प्रति सरेंडर, ऐसे शरणागति। तो ये कई प्रकार के हम देख सकते हैं, ये प्रपत्ति यानी शरणागति की बात हो रही है। तो उस परिप्रेक्ष्य में जो आज का श्लोक है वो एक गुरु और जो शिष्य है उनके जो बीच का संबंध है तो उसके ऊपर केंद्रित है। और स्पेशली आज हम चर्चा करेंगे प्रपत्ति की, शरणागति की, सरेंडर की, जो कि हम रामायण के विभिन्न जो पात्र हैं उनसे हम सीख सकते हैं। और ये सीख क्यों ज़रूरी है? क्योंकि केवल और केवल एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम द्वारा ही हम ये सब जान पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो समझना बहुत कठिन है। रामायण हमारे लिए मात्र एक एडवेंचरस कहानी हो जाएगी, जिनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तो वैसे ही अगर हम चाहें कि केवल ये हमारे लिए एक एडवेंचरस कहानी बन के ना रह जाए, इससे हम क्या अच्छे से अपने जीवन में उतारें, तो उस हिसाब से हमें ये रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस श्लोक में आज हम और भगवान ने चाहा तो कुछ अगले 2-3 दिनों तक इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस पे चर्चा करेंगे अगले 2-3 दिनों को सेम टॉपिक में, कि किस तरह एक अच्छा शिष्य बना जाए, जो हम सब चाहते हैं। एटलीस्ट यहाँ जो बैठे हैं, बाहर के लोगों को तो कोई आइडिया नहीं है क्या शिष्य। एटलीस्ट कोई सोचेगा कैसे मैं अच्छा स्टूडेंट बन जाऊँ, जो अच्छे पढ़ते लिखते हैं। जिनको पढ़ने लिखने में कोई रुचि ही नहीं है उसको तो सोचेगा ही नहीं, लेकिन जो एटलीस्ट पढ़ने लिखने में कुछ रुचि है तो सोचेगा कैसे मैं अच्छा स्टूडेंट बनूँ। लेकिन वो पूरी थिंकिंग ही अलग है। या तो कोई एम्प्लॉय सोचेगा कैसे मैं अच्छा एम्प्लॉय बन जाऊँगा, कुछ भी, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। तो लेकिन एक शिष्य को ये सोचना चाहिए हर समय, हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किस तरह मैं एक अच्छा शिष्य बन पाऊँ। क्या या तो जो शिष्य ऑलरेडी है ये विचार करना चाहिए, क्या मैं अच्छा शिष्य हूँ अपने गुरु के प्रति, जो मेरे को करना चाहिए तो वो सब मैं क्या कर पा रहा हूँ, जस्टिस कर रहा हूँ अपनी डिसाइपलशिप की। तो ऐसे कई प्रश्न हमारे अंदर उठने चाहिए भक्तिमय जीवन में। तो आज का जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बताया गया है अनुवाद में कि बिकॉज यू आर माई ट्रांसेंडेंटल आई विच बाय योर मर्सी आई हैव अटेंड आफ्टर मैनी मैनी बर्थ्स। तो गुरु को बोला गया है ट्रांसेंडेंटल आई, चक्षु, जैसे हमने अभी मंगलाचरण में सुना, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। तो कई जन्मों तक हम क्या है, इस घोर जो अज्ञान का अंधकार है हम लोग उसमें जी रहे हैं, मर रहे हैं, उसमें फिर पैदा हो रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। जननी का जठर अंधकार में है, उसमें बहुत दुख है, फिर भी हम उस जठर को अपनाने के लिए रेडी हैं, उस दुख को अपनाने के लिए रेडी हैं। क्यों? अभी कुछ याद नहीं। तो उस अंधकार में जीवन में हम कई हमने वर्ष बिता चुके हैं। तो बहुनाम जन्मना, यहाँ बोला गया है कि
It is stated in Bhagavad Gita that after many births one surrenders to the Supreme Personality of God. कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। दुर्लभ बोल के एक शब्द होता है, तो दुर्लभ का अर्थ है कि रेयर, बहुत ही मुश्किल से पाया जाने वाला, और यहाँ लिखा है सुदुर्लभ। तो किसी भी हिंदी अगर हम डिक्शनरी फॉलो करें तो किसी भी शब्द के आगे यदि सु लगा दिया जाता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है बहुत। सुदुराचारी मतलब एक तो एक जगाई मदाई कौन थे? सुदुराचारी, मतलब एक तो दुराचारी होते हैं, लेकिन सु मतलब वो कई गुना ज़्यादा थे। सुमेधसः भागवतम में आता है ना, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम, उस श्लोक में लास्ट में आता है सुमेधसः, मतलब जो मेधावी हैं वो तो इंटेलिजेंट है, लेकिन जो बहुत 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 इंटेलिजेंट है वो क्या है? वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं कलयुग में। तो इसी तरह स महात्मा सुदुर्लभ, आज के इस वासुदेव सर्वमिति तो वो बहुत ही बिरले होते हैं, बहुत ही रेयर गिने चुने लोग होते हैं जो इस भगवत भक्ति को जानने का प्रयास करते हैं और बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मुझे उनकी शरणागति लेनी पड़ेगी। लेकिन ये जो रेयरिटी है हमारे अंदर, ये जो हम बिरलापन है, तो वो किस प्रकार आता है? वो आता है गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु ही यहाँ बोला गया वो ट्रांसेंडेंटल आई हैं, हमारी आध्यात्मिक एक चक्षु हैं कि जो हमारे इस जन्म और मृत्यु का जो सागर में हम बुरी तरह फंसे हुए हैं उसको रोक सकते हैं। तो इसलिए एक प्रामाणिक गुरु का हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक है, और प्रामाणिक गुरु की प्रपत्ति करना, उनसे जिज्ञासा करना। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, कि हमें देखना चाहिए कि हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके जिज्ञासा करनी चाहिए कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, क्या मेरे लिए सबसे अच्छा है, जो कि आजकल हम नहीं देखते हैं। आजकल तथा कथित गुरु के पास, साधुओं के पास लोग जाते हैं अपनी अपनी समस्याएं लेके, और गुरु भी उनको ऐसे ही उत्तर देता है, आप ये करो वो करो, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो ना तो वो जिज्ञासा होती है, ना वो उत्तर होता है, ना तो वो गुरु होते हैं, ना वो शिष्य होते हैं। और उनका भविष्य दोनों का ही अंदर एक अलग सा एक नरक ही इसके लिए बना रखा है। बहुत सारे हम देखते हैं ना, अलग अलग प्रकार के नरक हैं, 5वें स्कंद में एक देखते हैं, तो कई नरकों में एक अलग प्रकार का नरक ही ऐसे लोगों के लिए बना रखा है कि जो लोग दूसरे को गुरु शिव के नाम पे ठगते हैं, और वो भी, उनके शिष्य भी उसमें जाते हैं उनका पीछा करते करते। तो ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है, हमें क्या जाना है? प्रामाणिक गुरु की खोज में, और उनको हमें प्रपत्ति करनी है, जिज्ञासा करनी है। जैसे हम रामायण के एकदम प्रारंभ में देखते हैं कि वाल्मीकि ऋषि के विषय में बताया गया है। तो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में नारद जी आते हैं, और उनको और नारद जी जब आते हैं तो हाय हेलो नहीं होता उधर। आजकल हम दो जन मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं ना, सबसे पहला प्रश्न हाउ आर यू, आप कैसे हैं, जो इस भूमंडल का सबसे मूर्खता भरा प्रश्न है। फिर भी हम पूछते हैं, मुंह से ऐसे निकल जाता है। इवन भक्त लोग भी, हम लोग मिलते हैं, हम लोग भी ऐसे मुंह से अकस्मात ही निकल जाता है, हाउ आर यू प्रभु, हाउ आर यू माता जी। और जैसे भी जिस भी हालत में हम हो, आई एम फाइन बोलना ही पड़ता है। तो ये सब एक आदत जैसी हो गई है। तो लेकिन जब शिष्य गुरु का मिलन होता है तो इमीडिएटली टॉपिक पे आ जाते हैं, वो कोई इतना वो सब नहीं होता फॉर्मेलिटी। तो इमीडिएट जैसे सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से इमीडिएटली पूछे के आमे के न मोरे जा रहे था पुत्र, बताइए कि मैं कौन हूँ, क्यों मैं इस त्रिताप से मैं जूझ रहा हूँ। तो यहाँ भी जब
नारद जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में आए। इमीडिएटली नारद वाल्मीकि ऋषि ने कई प्रकार के प्रश्न पूछने उनसे शुरू कर दिए आजकल के परिप्रेक्ष्य में कि आजकल कौन है जो धर्म का सबसे अधिक सहारा लेते हुए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं। कई तरह के उन्होंने ऐसे रामायण में पढ़ सकते हैं एकदम बिगिनिंग में। तो फिर क्या हुआ, नारद जी ने राम जी का वर्णन शुरू करना किया और उनके हृदय में एक दीप जला दिया राम जी के विषय में, वाल्मीकि के हृदय में। तो इसको क्या बोलते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो वास्तव में जो हमारा चक्षु का जो ट्रांसेंडेंटल आई जो दान देता है वो गुरु ही। ये हमारी आंखें, देखने में आंखें लग सकती है, लेकिन ये इनको बोला गया है चर्म चक्षु। शास्त्र में चर्म चक्षु, एक चर्म है, एक कुछ मसल है, कुछ मांस है, ऐसे चर्म चक्षु। तो उससे हम दुनिया भर की चीज़ें देख सकते हैं, कुछ समझ नहीं सकते हैं। तो उसकी समझ गुरु देते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल आई। तो चक्षु दान दिलो जे, तो वो गुरु हमें वो दान देते हैं। और दिव्य ज्ञान हृदय, सबसे बड़ा उनका ध्यान क्या, दान क्या होता है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। जो वास्तविक जो नॉलेज है, ज्ञान है, जिसके द्वारा यहाँ लिखा गया है कि एक तरफ से हम दूसरे तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ लिखा है पारगम रेफर्स टू वन हु कैन टेक द डिसाइपल्स टू द अदर साइड। तो वो गुरु ही हैं जो हमारा हाथ पकड़ के हमको दूसरी तरफ ले जाते हैं। दूसरी तरफ यानी इस अज्ञान भरे अंधकार भरी दुनिया से ले जाके ज्ञान भरे जो भगवत धाम है, आनंद वाला धाम है। तो वहाँ कौन ले जाएगा हाथ पकड़ के, एज ए पेरेंट जैसे ले जाते हैं ना, माँ बाप बच्चों को ले जाते हैं। कब ले जाते हैं, जब बच्चा सरेंडर हो जाता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बैठ के एकदम रोने लग जाते हैं और परेशान करते हैं, लेकिन जो एकदम आ जाता है गोद में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, माँ बाप ले जाते हैं। तो ये जो गुरु हैं तो उनका काम है। तो गुरु के भी कर्तव्य होते हैं और शिष्य के भी कर्तव्य होते हैं, दोनों। ऐसा नहीं कि गुरु का पोजीशन बहुत ही महान है और शिष्य का तो और कुछ नहीं, वो तो महान है ही, लेकिन जो गुरु के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा, केवल गुरु का जो नाम से वो एक जगह पे बैठा है, तो वो वास्तविक गुरु नहीं है। और एक शिष्य जो है, जो एक शिष्य होने का ढोंग करता है, लेकिन वास्तविकता में शिष्यत्व के जो जैसा होना चाहिए शिष्य, उसको पालन नहीं करता है, तो वो भी वास्तव में शिष्य नहीं है। दोनों की अधोगति होती है, दोनों। तो इसीलिए आज और अगले 1-2 दिन में हम चर्चा करेंगे शिष्य के जो लक्षण। और कहाँ से चर्चा करेंगे, एक श्री वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत महान आचार्य हुए थे, उनका नाम है वेदांत देशिका, यदि आपने कभी सुना हो। तो ये वेदांत देशिका कौन है, ये जो भगवान है, नारायण है, तो उनके जो अलग अलग पैराफर्नेलिया हैं, तो उस पैराफर्नेलिया में जो घंटा हम बजाते हैं ना, बेल, तो वो बेल का अवतार है ये वेदांत देशिका भी। और इन्होंने कई प्रकार के ग्रंथ लिखे हैं, कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, कमेंट्रीज लिखी हैं। तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो इन्होंने पुस्तक लिखी है, जिसका हम आज चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं न्यास विंशति। न्यास विंशति मतलब 20 श्लोकों में उन्होंने गुरु के लक्षण और शिष्य के लक्षण के विषय में अच्छे से बताया है। और ये दोनों अगर हम पूरे 20 श्लोक चर्चा करें तो मेरे को यहाँ कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा, क्योंकि एक श्लोक बहुत हम चर्चा, एक वर्ड में बहुत कुछ चर्चा कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा कन्फ्यूजन था कि इसमें क्या है कि शुरू के 2 श्लोक जो हैं उसमें गुरु के 14 लक्षण बताए गए, जो प्रामाणिक जो आचार्य होते हैं, आचार्य उपासनम, उनके 14 लक्षण बताए गए। और अन्य तीसरे श्लोक में
एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए, उसके लगभग 14-15 लक्षण बताए गए हैं। तो ये कन्फ्यूजन था पहले के दो गुरु के विषय में ले या शिष्य के प्रति। तो मैं तो पहले सोच रहा था पूरा ही ले लूँ, लेकिन बहुत जल्दी फिर भागना पड़ेगा। या तो गुरु का ले लूँ, वो भी अच्छा है, उसमें भी समय एक्चुअली बहुत जाएगा। तो सोचा शिष्य का लेते हैं अगले 1-2 दिन में, आज का मिला के। और यदि सब कुछ फास्ट गया तो गुरु को भी टच कर सकते हैं, आचार्योपासना। तो वो ये उनकी शिक्षाएं हैं। वेदांत देशिका ने बहुत ज़बरदस्त बुक लिखी है, और पूरा इसमें मेन फोकस जो है, जो सेंटर है, वो है प्रपत्ति। प्रपत्ति मतलब सरेंडर। तो किस तरह एक जो आदर्श गुरु होता है वो अपने भगवान के प्रति, वो अपने गुरु के प्रति सरेंडर्ड होता है, शरणागत होता है, और किस तरह एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति सरेंडर होना चाहिए। तो जैसा कि हमने रामायण से चर्चा की थी कि प्रपत्ति के बहुत उदाहरण हैं। राम जी को जब बोला गया, पता चला कि मेरे को वनवास हुआ है और भरत का राज्याभिषेक होने वाला है, तो राम जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और ये सिचुएशन ऐसा था कि बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन था। मान लीजिए आप लोग, कुछ लोग ऑफिस में काम करते होंगे, तो आपको बोला गया कल आपकी प्रमोशन है, एकदम अनाउंस कर दिया गया ऑफिस में, कल सच एंड सच है, उनकी प्रमोशन है। तो कितने खुश होंगे ना, और प्रमोशन, लड्डू बांटेंगे सबको पहले से ही एडवांस में। कितनी खुशी है, पूरी रात सो नहीं पाएंगे, प्रमोशन है कल। और अगले दिन पूरा एकदम सज धज के तैयार होके, प्रमोशन की स्पीच तैयार करके, सब कुछ करके हम ऑफिस में आए, और ऑफिस में बोला गया कि भैया प्रमोशन तो है नहीं, और इतना ही नहीं, तुम्हें निकाल भी दिया गया ऑफिस से। प्रमोशन तो भूल ही जाओ, तुमको निकाल भी दिया गया, कहीं और चले जाओ। तो यदि ऐसा शब्द कोई सुनेगा ऑफिस में आके, जिसने हृदय में मान ही लिया हो कि मेरा प्रमोशन है, लेकिन अगले दिन अचानक ऐसे सुनने को मिलेगा, तो हृदय का क्या वो होगा, मतलब स्थिति होगी। हम लोग तो पागल हो जाएंगे ना। लोग तो जिस ऑफिस में काम करते हैं उसकी बिल्डिंग से भी कूद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस पागलपन में। राम के साथ तो इससे भी, मतलब यही इसी प्रकार की सिमिलर सिचुएशन थी कि राज्याभिषेक होने वाला है, पूरे अयोध्या को पता है, पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगले दिन जैसे ही राम जी आए, बोले राम आपको भरत का राज्याभिषेक होगा और आपको 14 वर्ष वनवास में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। एकदम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये होती प्रपत्ति, सरेंडर। यस, आप जो कहेंगे पिताजी वो मैं मानूंगा। लक्ष्मण का सरेंडर, बोले इनके साथ मैं भी जाऊंगा। हालांकि उनकी स्वयं की पत्नी भी थी, उनका परिवार, माता वाता सब कुछ थे, लेकिन सरेंडर इतना है, प्रपत्ति इतनी है कि और कुछ उन्होंने देखा ही नहीं। ये मुश्किलें आएंगी, वो मुश्किलें आएंगी। भरत का सबने सोचा कि, बहुत लोग तो भरत को लांछन लगा रहे थे कि इसी ने प्लानिंग की है ये राज्य को पाने के लिए। लेकिन भरत जी ने क्या किया, उनका जीवन तो और भी कठिन था एक्चुअली। और भी हम महाभारत में हम देखें एक श्लोक में, इतना डिटेल में ये जो हमारे गुरु महाराज की, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज की जो रामायण है, उसको इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, संक्षिप्त है। लेकिन डिटेल में हम महाभारत पढ़ें तो हम देखेंगे कि भरत का जीवन तो और कठिन था। जैसे वो जी रहे थे, तो एक तो राम का विरह था ही, प्लस जो उनकी पर्सनल ऑस्टेरिटी थी, मतलब जो उनका रोज़मर्रा का जो दिनचर्या था, जो उनका खान पान था, वो तो सुन के तो हम तो पागल हो जाएंगे। उसमें वर्णन है कि कैसे गोमूत्र में थोड़ा जौ होता है ना, बार्ली, गोमूत्र में थोड़ा जौ को उबाल कर वो थोड़ा सा दिन में बस वही लेते थे। तो कैसे हम लोग की एकादशी में हालत ख़राब हो जाती है, उसमें भी इतने सारे हम नए नए रेसिपीज ढूंढते रहते हैं यूट्यूब में।
एकादशी कैसे हमारी अच्छी हो। एक तपस्या आती है महीने में, उसमें भी हम सोचते हैं कि कैसे इंद्रिय तृप्ति हो। तो लेकिन ये वास्तविक तपस्या भरत ने की थी, फुल सरेंडर थे राम, फुल सरेंडर, कोई इतना लेश मात्र भी पर्सनल उसकी कोई कामना नहीं थी। तो ये सरेंडर एक शिष्य के जीवन में अपने गुरु के प्रति होना चाहिए। ऐसा सरेंडर कि जो गुरु ने बोल दिया वही मेरे लिए पत्थर की लकीर है। मतलब इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु ने बोला कि ठीक है अभी हम प्रचार के लिए जाओ और ज़रूरत पड़े आप मांस खा लो। आपको बोल रहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाओ और सबको इनवाइट करो, फीस्ट में मांस बना दो। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा प्रचार होगा। आप नागालैंड में प्रचार करो, आप अरुणाचल प्रदेश में प्रचार करो, मांस खिलाओ। बाई चांस एक गुरु का ऑर्डर, तो क्या हमें मान लेना चाहिए? तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके गुरु जो भी बोल रहा है, या तो उनको बीड़ी पिलाओ, उनको सिगरेट पिलाओ, उनको मांस खिलाओ, इस प्रकार प्रचार करो तो अच्छे और भी आपके पास लोग आएंगे। तो वो गुरु के प्रति सरेंडर नहीं होता। वो एक गुरु के प्रति सरेंडर होता है अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके। क्योंकि केवल गुरु नहीं, हम तीन चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, गुरु, साधु, शास्त्र। तो शास्त्रोचित होना चाहिए जो भी गुरु। तो इसीलिए लेकिन यदि गुरु शास्त्रोचित बातें कर रहा है, वो स्वयं आचार कर रहा है, उसका पालन कर रहा है, तो हमें जो भी वो बोलेगा उसके लिए एकदम विदाउट कोई सोचे हुए हमें एकदम यस सर। भागवतम में आगे एक आता है जिसमें एक श्लोक में बताया गया है कैसे अपने पिता की बात माननी चाहिए पुत्र को, और गुरु की उसमें लिखा है यस सर ऐसे। तो गुरु का ऑर्डर मतलब यस सर बोल के पालन कर लेना है तुरंत, ये नहीं वो नहीं। तो ये सरेंडर आने में कई कई जन्म भी लग सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार का शरणागति हम में, मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनमें होगा, हम में तो नहीं कि गुरु ने कुछ बोला और हमने तुरंत मान लिया। तो लेकिन उस प्रकार के सरेंडर के लिए ही हम लोग प्रयासरत होना चाहिए। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं, आज चर्चा करेंगे एक 15 जो डिफरेंट क्वालिटीज़ यहाँ वेदांत देशिका जी ने डिस्क्राइब की है प्रपत्ति के आधार बनाते हुए कि एक शिष्य को किस प्रकार गुरु ग्रहण करने चाहिए और उनका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, तो वो हम सीखेंगे। तो इस न्यास विंशति का जो तीसरा श्लोक है, जिससे शिष्य लक्षणम, शिष्य के लक्षण बताए गए हैं, तो अनेक लक्षण बताए गए हैं। श्लोक इस प्रकार है, सद्बुद्धि साधु सेवी समुचित चरिता तत्वबोध अभिलाषी शुश्रूषु त्यक्तमान प्रणिपातन पर प्रश्न काल प्रतीक्षा शांत दांत अनसोयु सरनामुपगत शास्त्र विश्वासशाली शिष्य प्राप्त परीक्षम कृत विदभिमंतम तत्व शिक्षानीय। तो इसमें अलग अलग प्रकार के संस्कृत में गुण बताए गए हैं कि एक आदर्श शिष्य कैसा होना चाहिए और किस प्रकार अपने गुरु को उसे अप्रोच करना चाहिए। तो उसमें एक के बाद एक हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आता है सद्बुद्धि। सद्बुद्धि सम्यक ज्ञानवान, उसका मतलब है कि वो जो एक आदर्श शिष्य है उसको अच्छा ज्ञान है और वो बुद्धिशाली है। तो ये शिष्य एक अच्छे शिष्य बनने का एक बहुत बड़ा एक क्राइटेरिया है कि शिष्य जो है वो मूर्ख नहीं होता है। तो आजकल हम देखते हैं, जैसे मैंने पहले थोड़ी सी चर्चा की थी, कि सबसे पहले तो लोगों का इस सेल्फ रियलाइजेशन ये सबसे कुछ लेना देना ही नहीं, बल्कि ये कृष्ण भावनामृत जो है लोगों की सेंस ग्रेटिफिकेशन में एक ऑब्स्टेकल बन जाता है। और वो बहुत नेचुरल है, हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं कि
मान लीजिए आप रूम में हो और आप हरे कृष्ण महामंत्र को लगा दिया है, प्रभुपाद का टेप या कोई भी है भक्त भी आप उधर हरे कृष्ण महामंत्र कोई भी जप कर रहा है, तो हम ऐसे सिचुएशन में देखते हैं कि वो भौतिक चीज़ों में हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इंद्रिय तृप्ति भरी जो चीज़ें होती है या कोई वीडियो हम देखेंगे या कुछ हमें करना है उस पर हम ध्यान नहीं लगा सकते। वो हमें लगता है कि ये चले जाए इस रूम से तो फिर मैं ये इंद्रिय भोग कर पाऊँ या जो भी है, क्योंकि जब तक वो हरे कृष्ण महामंत्र का टेप बज रहा है, हम सुन रहे, कान में जा रहा है या कोई भक्त जप कर रहा है या कुछ, तो हम वो इंद्रिय भोग में हम नहीं संलिप्त हो सकते। उससे डिस्टर्बेंस है बहुत बड़ा हमारे इंद्रिय भोग के लिए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि ये जो भक्ति है ये जो इंद्रिय भोग है उसके लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है लोगों को, इसलिए पसंद नहीं आता है। हम इतने सारा दरवाज़ा बंद करके क्यों वो आरती करते हैं या जो भी है, क्यों लोगों को पसंद नहीं आता है ये सब, क्यों? क्योंकि वो उनकी इंद्रिय तृप्ति में एक बहुत बड़ा बाधा है, कृष्ण भक्ति या भगवान का नाम। क्योंकि ये भगवान हरे कृष्ण महामंत्र इस लोक का तो है नहीं, गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन गोलोक का है और कोई मटेरियल शब्द तो है नहीं। इसलिए जैसे ये किसी के कान में जाता है, किसी भोगी के कान में, उसको तुरंत अनकंफर्टेबल महसूस होता है, राक्षस या भोगी, तो इसलिए लोगों को ये पसंद नहीं है। जैसे एक बार मैं पानीहाटी, एक मंदिर है हमारा इस्कॉन पानीहाटी बंगाल में, तो पानीहाटी वहाँ आपको पता है उनका नित्यानंद प्रभु का उधर फर्स्ट टाइम हुआ था ना, उन्होंने एक बार बहुत बड़ा फीस्ट दिया था उधर रघुनाथ दास गोस्वामी चिड़ा दही फेस्टिवल जहाँ होता है जो पानीहाटी, तो वो मंदिर के पास ही एक रूम में हम गुरु महाराज के साथ ठहरे हुए थे और फिर महाराज तो अपने रूम में जप कर रहे थे अंदर और मैं थोड़ा रूम से बाहर आके, रोड था और ऊपर अपार्टमेंट थे जैसे इधर है, उस इधर से इससे छोटे छोटे थे, तो मैं वो रूम के बाहर एक सड़क है उधर जप कर रहा था, थोड़ा इतना ज़ोर से भी नहीं, धीरे धीरे कर रहा था। तो अचानक ऊपर से आवाज़ आई, हेलो हेलो सर, हेलो हेलो। तो पहले तो पता ही नहीं चला आवाज़ आ किधर से रही है, फिर ऊपर इधर उधर देखा, फिर ऊपर देखा तो पहले माले में एक व्यक्ति बोल रहा था, तो आप वो मेरे को बोला, आप हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? हम पूरी रात काम करके आते हैं, अभी सोना है थोड़ा, तो उसमें भी आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब कहीं और जाके आपका भजन नहीं कर सकते हैं क्या? ये है वो है। और मैं तो ऐसे बोल रहा था कि मेरे को ही हार्डली सुनाई दे रहा हो, लेकिन उसको पता नहीं कैसे सुनाई दे दिया और वो डिस्टर्ब भी हो गया, तो फिर मैं सॉरी बोल के चला गया उधर से। तो ये मतलब एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि लोग इससे डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सद्बुद्धि, तो एक शिष्य का काम क्या है? सबसे पहले तो बुद्धि होना, बुद्धि कि वास्तव में मेरे को शिष्यत्व क्यों ग्रहण करना है और किसकी ग्रहण करनी है। ऐसा व्यक्ति नहीं कि जो मेरे इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा देने के लिए मेरा गुरु बने। कई बार लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, बहुत लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों के पास, क्यों? क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति अभी ध्यान से ठीक से हो नहीं रही है, तो हम और कैसे इंद्रिय तृप्ति करें? तो गुरु जी आप कुछ चमत्कार कर दो, और फिर वो कुछ चमत्कार करता है और इसका पैसा वैसा छीन लेता है, सब कुछ, ये सब उसका काम है। तो ये जो बुद्धिशाली शिष्य है उसका ये कर्तव्य नहीं होता। अगर उसके मन में भी दीक्षा, इस्कॉन में बोल रहा, अगर उसके मन में भी दीक्षा प्राप्त करने के बाद ये विचार रहे कि मेरे गुरुजी मेरी भौतिक चीज़ों को पूर्ण करने के लिए मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, तो कई बार हमने देखा है कि वो गुरु को रिजेक्ट ही कर देते हैं या गुरु से उनका विश्वास उठ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी जो भौतिक इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में गुरु मेरी सहायक नहीं बन रहे। तो इसलिए एक शिष्य को वास्तविकता में बुद्धिशाली होना चाहिए कि वास्तव में मैं अपने जीवन में चाहता क्या हूँ। तो ये इंटेलिजेंस होनी चाहिए हमारी, इनिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, तो इनिशियल इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि मैंने भक्तिमय जीवन क्यों अपनाया है।
यदि भौतिक जीवन से ऊब कर मैं इस भक्तिमय जीवन में आया हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये भौतिक जीवन में रह के भी मैं भक्तिमय जीवन में रह के भी मैं भौतिक जीवन का भी आनंद उठा लूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय शुभ यात्रा। हरे कृष्णा। No, I should have come with you. I'll miss. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. हरे कृष्णा। तो यस, तो बुद्धिशाली होना चाहिए। तो बुद्धि, सद्बुद्धि, यहाँ एक शब्द बहुत अच्छा यूज़ किया गया है इसमें, सद्बुद्धि। बुद्धि तो हो सकती है हमारी अलग अलग चीज़ों में। लोग ये लैपटॉप बनाया है, इसके लिए भी बुद्धि लगाई होगी। तो हमारी बुद्धि किस तरफ चैनल करनी है, वो हमको बहुत, शिष्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। कई बार शिष्य क्या होते हैं, ऐसा ट्राई करते हैं कि मैं तो अपने गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान हूँ। गुरु को भी नीचा करने का कोशिश करेंगे शिष्य लोग कि मेरी बुद्धि तो और ज़्यादा है। गुरु को एडवाइस करना कि ऐसा नहीं वैसा करेंगे, ये वैसा होना चाहिए, ये नहीं वैसा होना चाहिए। हमें लगता है कि गुरु की उतनी बुद्धि है नहीं, तो वो बुद्धिशाली नहीं होता, वो मूर्ख होता है। तो सबसे उच्च चरित्र का शिष्य कौन होता है कि जो गुरु के सामने एकदम मूर्ख बना रहे। गुरु कुछ बोल भी दे तो भी अपनी बुद्धि ना लगाए, पलट कर तर्क ना करे। तो वो एक अच्छे शिष्य के लक्षण होते हैं, जो पलट कर तर्क करता है और अपनी सफाई देता है। इवन उनकी गलती ना हो लेकिन सफाई देता है कि, लेकिन तो वो अच्छे शिष्य के लक्षण नहीं। जैसे हमारे साथ कई बार होता है महाराज की पर्सनल सेवा में, किसी ऐसी चीज़ के लिए डांट पड़ जाती है जो हमने की ना हो। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कल ही हम चर्चा कर रहे थे उधर नंदुरबार में, तो एक बार हम लोग हमारे गुरु महाराज का रूम क्लीनिंग कर रहे थे, डेली सेवा होती है। और रूम क्लीनिंग करते समय अचानक महाराज बाहर थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला मेरी डायरी लेके आओ। तो डायरी लेके आया, दिया, फिर चला गया। और थोड़े समय बाद फिर बुलाया और उन्होंने अपनी डायरी खोली और डायरी के अंदर पेन रखा था उनका। तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उनको डायरी के अंदर पेन रखना। एक्चुअली वो अच्छी आदत नहीं है क्योंकि उससे पेपर, वो पेज बाइंडिंग ख़राब होती है। और मेरे को कोई आइडिया नहीं वो पेन किसने रखा, मतलब मैंने तो बिल्कुल भी नहीं रखा। लेकिन मैं, जिसको भी हम बुलाते हैं साफ़ सफाई के लिए, वो लोग प्रथम बार आते हैं, उनको कुछ पता नहीं। तो जनरली हमारी आदत होती है ना, घरों में भी पेन देखा तो बुक के अंदर रख दो, नोटबुक के अंदर जो, तो उसने रख दी होगी। अब मेरे को कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके कारण मेरे को अपने जीवन की बहुत बड़ी डांट मिली। तो बहुत बड़ी डांट उस समय, तो बहुत ही खतरनाक। तो मैं क्या करूँ उधर, महाराज मैंने नहीं रखा, मेरे को तो पता भी नहीं है कहाँ से आया ये, तो वो सब नहीं पता है। तो जो बोल रहे हैं सुन लो मूर्ख की तरह, ये हमारे लिए अच्छे के लिए ही है। तो उसी तरह जो शिष्य है उसको हर चीज़ में अपनी बुद्धि लगा के, ऐसा नहीं है कि मेरे को अपने गुरु से भी ज़्यादा बुद्धिमान बनना है, लेकिन किस जगह बुद्धि लगानी है कि किस प्रकार मैं इन भगवान के इन शुद्ध भक्त का अच्छे से सेवा कर पाऊँ। भगवान ने मेरे को कई जन्मों बाद ये एक मौका दिया है, एक शुद्ध भक्त के सानिध्य में मेरे को लाए हैं, तो किस प्रकार मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, किस प्रकार मैं उनको प्रसन्न कर पाऊँ। तो ये होती है सद्बुद्धि, मतलब बुद्धि का सदुपयोग। हो सकता है कि वो फिजिकली वो आपके गुरु आपसे बहुत दूर हों, लेकिन फिर भी हर समय मन में यही रहना चाहिए कि किस प्रकार मैं मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाऊँ। और उसके लिए पहले व्यक्ति की पसंद नापसंद जानना पड़ता है कि इनको क्या पसंद है। और हम सबको पता है कि प्रभुपाद को क्या पसंद है, उनके जो अनुयायी शिष्यगण हैं उनको क्या पसंद है। तो उस हिसाब से यदि हम अपनी बुद्धि को एंगेज करेंगे
तो उससे क्या होगा? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, गुरु तो प्रसन्न होंगे ही। और हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं, गुरु तो मेरे बैठे होंगे कहीं सेलम में और मैं हूँ इतनी दूर कल्याण में, तो उनको पता कैसे चलेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इधर बैठे बैठे? क्या अनिरुद्ध भगवान प्रभु हमारी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं भेजेंगे? उनको कैसे पता लगेगा क्या हो रहा है? तो वो इस प्रकार का जो सोच है वही गलत है। जो इस प्रकार की सोच से सेवा करता है वो वास्तविक सेवा नहीं है शिष्य की। तो सोच ऐसी है कि गुरु ने मेरे को बोल दिया है तो मेरे को वो करना है। गुरु को बुक डिस्ट्रीब्यूशन पसंद है, प्रीचिंग पसंद है, तो मेरे को उसमें लगना है, बुक लेके निकल जाना है। ऐसा नहीं कि अभी प्रभु को बोलूँ, मैं इन्फॉर्म करके जाऊँ, प्रभु मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा हूँ, देख लो, प्रूफ है मैं जा रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो किसी भी सिचुएशन में हम यदि गुरु की जो बातें हैं उसको हम आज्ञा है उसको पालन कर रहे हैं, तो गुरु कहीं भी हो इस संसार के किसी भी कोने में उनको हम प्रसन्न कर रहे हैं और इस तरह हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। तो ये होता है बुद्धि का सदुपयोग। अच्छी जगह हमने अपनी बुद्धि को इन्वेस्ट किया और उसी बुद्धि का इन्वेस्ट करके हम कई चीज़ें कर सकते हैं, भौतिक चीज़ें, इंद्रिय तृप्ति वाली चीज़ें, तो वो हमें अधोगति कर रहे हैं। तो इसलिए जो एक भक्त होता है, एक शिष्य होता है, उसको यहाँ कहा गया है सद्बुद्धि बुद्धिशाली। तो वो एक तो सद्बुद्धि होता है और बुद्धिशाली, अपनी बुद्धि को भक्तिमय कार्यकलापों में लगाता है, ना कि कहीं और। तो ऐसी जगह लगाता है जिससे गुरु प्रसन्न हो, तो इस प्रकार वो गुरु के प्रति शरणागत होता है। दूसरा जो यहाँ गुण बताया गया ऐसे भक्त का, वो है साधु सेवी। He has the good disposition to mingle with Bhagavatas. He is a Bhagavata seva paran. Bhagavata kaima karyam comes naturally to him. तो साधु सेवी होना चाहिए। साधु सेवी मतलब कि हर समय साधुओं का, वैष्णवों का किस प्रकार सेवा करना। तो वो जो शिष्य है वो, उसकी प्रपत्ति जो है, उसका जो आत्मसमर्पण है वो टॉप लेवल का हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें दिखता है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो केवल गुरु के सामने आने से ही नाटक करेगा, वो हर भक्तों की, वैष्णवों की सेवा करने के लिए रेडी होता है। और इसका बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे इस्कॉन के एक बहुत ही प्रमुख श्रील प्रभुपाद के शिष्य, उनका नाम है जयानंद प्रभु। हम देखते हैं कि इस्कॉन में जब भी रथ यात्राएँ होती है तो रथ के आगे उनकी एक फ़ोटो लगाई जाती है। तो वो ऐसे थे साधु सेवी, हर समय उनका जीवन का लक्ष्य क्या था? मेरे को वैष्णवों की सेवा करना है। एक बार वो किसी मंदिर में बहुत टॉप लेवल में थे, प्रेसिडेंट थे, और उस मंदिर की बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी को जाना था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ड्राइवर नहीं थे उनके पास। तो वो प्रभुपाद को मिन्नतें करने लगे, प्लीज़ मेरे को इनका ड्राइवर बना दो, मेरे को वैसे इनकी सेवा करने का कोई मौका नहीं मिलता, ये लोग इतनी सेवा करते हैं, तो प्लीज़ ये 1 महीने के लिए मेरे को इनका ड्राइवर बना दो, मैं इनको हर तरह से सेवा करना चाहता हूँ। तो बहुत ही वो साधु सेवी थे। हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब किसी सेंटर में आते थे उनके, तो सब भक्त लोग क्या है, प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद बोल के उनके पीछे जाते थे। और श्रील प्रभुपाद जब व्यासासन में बैठते थे तो वो पूछते थे, अरे वो जयानंद किधर है? जयानंद नहीं दिख रहा है, किधर है? तो बोल रहे नहीं, वो प्रभुपाद वो सबके लिए उधर भोग ये प्रसाद बना रहे हैं या कुछ और सेवा में है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रभुपाद बोल के सेवा छोड़ के आ गए प्रभुपाद, वो आर्टिफिशियल तरीके की उनकी भक्ति नहीं थी। तो साधु सेवी मतलब कि इस प्रकार का हमारा अंदर से जो हमारा गुण डेवलप हो कि मेरे को सभी वैष्णवों की सेवा करनी है, तो इस तरह का व्यक्ति एक अच्छा शिष्य बन पाता है। तो इसलिए जब हम वैष्णव समाज में रहते हैं तो हर समय तैयार होना चाहिए कि मेरे को कैसे हर प्रकार सभी वैष्णवों की सेवा में लगे रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं इस वैष्णव का सेवा करूं तो मेरा भला हो जाए, नहीं मैं उसको थोड़ा सेवा करूं, या तो गुरु आए उनकी करूं, सभी वैष्णवों को भूल जाऊं। तो इस प्रकार के जो मैथमेटिक्स लगाते हैं वो अच्छा शिष्य नहीं बन सकते।
जैसे हम देखते हैं कि हम गुरु महाराज के साथ जाते हैं कभी कभी, तो हमारे साथ साथ उनका बहुत सारा लगेज भी होता है, बहुत सारे लगा, और अलग अलग बैग्स हैं महाराज के बहुत सारे। जैसे उनका एक पूरा इतना बड़ा बैग, पूरा उसको मेडिसिन ही है उसमें, अलग अलग प्रकार की, बहुत बड़ा बैग है। एक बैग उनका पर्सनल कपड़ों वाला बैग, एक बैग उनका मूची किट बोलते हैं, उसमें उनकी सारी जो टॉयलेट किट्स और वो सब रखी होती हैं। एक उनका शोल्डर बैग होता है, और पहले एक उनके चेयर का बैग हुआ करता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें लेके हमको ट्रैवल करना पड़ता है, प्लस अपना बैग ये सब। तो एक बार हम गुजरात में सौराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे थे, महुआ नाम का एक जगह है, महुआ। पहले हम सौराष्ट्र में बहुत ट्रैवल करते थे, 2-2 दिन में ट्रैवलिंग ऐसे। तो वो महुआ जैसे ही हम पहुँचे तो जैसे स्वाभाविक है, महाराज आए हैं, कीर्तन चल रहा है। और क्या होता है जनरली जब महाराज किसी जगह पे आते हैं तो लोग कीर्तन में इतना हो जाते हैं, और महाराज जैसे चलते हैं आगे जा रहे हैं तो लोग उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो सबसे ख़राब हालत होती है सर्वेंट्स यानी हम लोग की, कि महाराज के इतने सारे बैग हैं और हमारे बैग हैं, तो उसको उठाना, पहले तो हम लोग को पूरा उठा के फिर पीछे पीछे चलना, क्योंकि कोई भक्ति नहीं है उधर मदद करने के लिए। तो जब महुआ में पहुँचे और सब कीर्तन कर रहे थे, हमने बैग उतारा और सब महाराज के पीछे पीछे जाने लगे, तो महाराज ने उधर डांटा सबको, बोला कि कोई मदद करो, इनकी हेल्प करो, उठाओ ये सामान। ऐसे अकेले कैसे उठाएंगे। और एक इंसिडेंट हुआ था उधर मथुरा स्टेशन में। मथुरा स्टेशन में अभी तो ठीक है, लेकिन पहले क्या है, वो डिस्प्ले बोर्ड नहीं था, मतलब ये कोच इधर आएगा, वो कोच उधर आएगा, और अनाउंसमेंट भी उतना अच्छा नहीं था, अचानक बदल देते थे स्टेशन। और गाड़ी पता नहीं इधर आ रही है कि कहीं पर, ऐसे कुछ था। तो उस समय हमारे साथ बहुत सारा लगेज था महाराज का, प्लस हमारे एक मंदिर है, सेंटर है, उसके हमारे पास 5-6 ब्रह्मचारी भी थे। तो हम गाड़ी आने से हम लोग आधा घंटा ऐसे 1 घंटा पहले आ गए थे। तो हम तो जब कर रहे थे, और वो सभी ब्रह्मचारी उस सेंटर के वो सबने एक किताब निकाली और पढ़ने लग गए कुछ ना कुछ। तो अभी गाड़ी आने का समय हो गया, और वो गाड़ी जैसे डिस्प्ले नहीं हुआ कहीं, और हमारे कोच रोक दिया। तो इतना सारा सामान लेके उधर जाना है, तो हम महाराज का जल्दी जल्दी एक बैग इधर डाला, दूसरा बैग इधर, 2 इधर, ऐसे करके, क्योंकि टाइम पे चढ़ा। और वो ब्रह्मचारी लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं कि अभी चलेंगे, ख़त्म करेंगे, 5 मिनट रुकेगी। तो फिर गुरु महाराज ने देखा और बहुत डांटा उनको, ऐसी पढ़ाई किस काम की आपकी, चलो मदद करो वो सब। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि कई बार हमको लगता है कि सभी वैष्णवों की सेवा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ प्रोमिनेंट वैष्णव हैं, उनकी सेवा करने से मेरा उद्धार होगा। ये तो कल का आया नया छोकरा है, इसका क्या मैं सेवा करूँ। तो ऐसा नहीं, वैष्णव की जो परिभाषा है, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, ऊपर दूसरे के दुख देख के उसको दुख होता है। तो इसलिए जब सेवा भावी जो वैष्णव है, वो कहीं भी झाड़ू मारने में, पोछा मारने में, वो कहीं भी हिचकिचाएगा नहीं। कभी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं इधर झाड़ू, उसको क्यों नहीं बोल रहा। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपना छोड़ के दूसरों का देखते हैं। और ये बहुत कॉमन वर्ड होता है एक नवीन भक्त में, कनिष्ठ भक्त में, कि मेरे को क्यों बोल रहे, उसको क्यों नहीं बोल रहे। तो ये हमारा बहुत बड़ा कि एक सेवा का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसको भी हम ठुकराते हैं। भगवत धाम में जाए तो लाइन इतनी लंबी है सेवा की, वो तो मिलेगी भी नहीं शायद हमको वो सेवा। लेकिन यहाँ हम क्या बोलते हैं, मेरे को क्यों बोलते हो, उसको क्यों नहीं बोलते। तो एक जो सच्चा शिष्य है वो साधु सेवी। तो जब उसका नेचर इस तरह होता है सेवा का, तो वो भक्त का हो चाहे कनिष्ठ भक्त का, मध्यम, उत्तम, वो सबकी सेवा में अपना 100% बेस्ट देगा, सबकी सेवा में। तो इस तरह वो क्या है, एक सेवा भावी भक्त बनता है। उसका भाव ही है सेवा का, क्योंकि वो हमारा नेचर है सेवा करना, वो हमारा धर्म है, किसी न किसी की सेवा करना, ये आत्मा का धर्म है। लेकिन किसकी सेवा करना हमें वो पता नहीं। लोग कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, कोई बूढ़े काल में कुत्ते बिल्ली की सेवा कर रहा है,
लेकिन जो आत्मा का जो धर्म है तो वो हमें समझना पड़ेगा कि सेवा करना आत्मा का धर्म है, लेकिन किसकी? भगवत भक्तों की। और इस प्रकार भगवान की सेवा में एक दिन नियुक्त होना। तो ये साधु सेवी जो एक नेचर है वो अगर किसी भक्त में नहीं है तो वो इस्कॉन में आके अपना समय व्यर्थ कर रहा है। यदि कोई इसलिए आया है कि सब लोग मेरी ही सेवा करें और मैं कुछ ना करूं तो वो एक गलत जगह में है, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है वो सेवा का मूवमेंट। सबको तुरंत, बहुत बार तो कोई सोचते हैं कि मेरे को कोई बोले तो मैं करूं, लेकिन नहीं, एक शिष्य कि मैं तो भैया आया था, किसी ने बोला ही नहीं, मैं चला गया, मेरे को कोई बोलते तो मैं करता। तो अंदर से कुछ भाव ही। और कई बार हम लोग देखते हैं ऐसे भक्त होते बोलने का जरूरत भी नहीं है, सेंटर में आते हैं, मंदिरों में आते हैं और क्या है उस मंदिर को, सेंटर को अपना सेंटर, अपना मंदिर समझते हैं। ऐसा कि नहीं मैं यहाँ गेस्ट की तरह जा रहा हूँ, तो तुरंत आके देखा कि हाँ यहाँ जरूरत है, ओ यहाँ मकड़ी के जाले लगे हैं, तुरंत वो झाड़ू लेके आएंगे या कुछ मकड़ी का जाला साफ करेंगे, देखेंगे और किसी जगह तो नहीं है। बाथरूम में जाएंगे और देखेंगे बाथरूम गंदा पड़ा है, किसी के कीचड़ से भरे हुए पैर के निशान हैं उधर जो भी है, तो तुरंत वो किधर है, वो मॉप स्टिक किधर है, जल्दी से साफ करो, साफ सुथरा रखना चाहिए। बर्तन देख रहा है, रात को कभी टूट गए, देख रहे बर्तन पुराने, हाँ बर्तन से और एक याद आया, हम एक बार एक सेंटर में थे, उस सेंटर में बहुत पहले की बात है, मैं कहाँ भूल गया, तो पूरा रात को हम लोग महाराज की सेवा करके सो गए। फिर रात को लगभग 12 साढ़े 12 का समय हुआ, कुछ बर्तनों की आवाज़ आ रही थी तो किचन से, तो जो सर्वेंट उस समय थे, मैं नहीं था उस समय, उन्होंने मेरे को बताया कि जो सर्वेंट उस समय थे, रात को 12 साढ़े 12 बजे बर्तनों की आवाज़ आ रही है। तो किचन से उसने सोचा कोई बिल्ली कुछ घुसी होगी, तो उसने, उसकी आँख खुल गई और जब वो किचन में गया तब उन्होंने देखा कि हमारे गुरु महाराज बर्तन धो रहे हैं सिंक में, सारे बर्तनों का ढेर, महाराज बर्तन धो रहे हैं। तुरंत उसकी तो नींद उड़ गई आधी नींद में गया था, ये क्या हो रहा है, तो बोला नहीं महाराज मैं करता हूँ। तो महाराज ने बोला कि रात के समय सोने से पहले यदि एक भी बर्तन ऐसा जूठा हमने रखा तो बहुत ही अपशगुन होता है। बहुत बड़ा हम लोग करते हैं ना, ज़्यादातर जो गृहस्थ जीवन में भी हम लोग देखते हैं। ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में तो इसकी कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो तो धो के ही सोना पड़ेगा। क्योंकि गृहस्थ ने अरे चलो ये पतीला दूध का उबाल के उसमें तो कल साफ कर देंगे, आज इसको पानी में भिगो के रख देते हैं। तो मतलब कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग रख देते हैं, हम देखते हैं गृहस्थ लोगों के घर में, तो वो बहुत गलत बात है। रात को सोने से पहले सारे बर्तन, किचन एकदम बढ़िया से क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ गुरु महाराज धो रहे हैं और उन्होंने लेसन दिया, तो फिर उस सर्वेंट ने साफ किया उधर। तो महाराज को ज़रूरत थी वो सब करने की, अगले दिन भी तो बता सकते थे कि ऐसा मत रखो, लेकिन अपने एग्जाम्पल से लोग सिखाते हैं। तो इसीलिए, और वो सेवा करने के लिए उनको किसी प्रकार का वो नहीं था कि मैं तो एक बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, मेरे को ये छोटी चीज़ क्यों करनी चाहिए, इनकी सेवा, इनको डांटो। कर सकते थे ना, डांट मारने से तो वो आके करेंगे, उनकी वो अथॉरिटी है, लेकिन वो ऐसा भाव ही हो गया है उनके, इनबिल्ट बोलते हैं ना, ऐसा उनके अंदर ही है सेवा। तो वो हमें अपने अंदर लाना है कि किस तरह कभी हम कुछ देखें तो हमें तीसरे व्यक्ति को ना बोलने पड़े कि हमको ये करो, चलो अभी ये कर दो, वो कर दो। जब हम देख रहे हैं कि वो चीज़ इधर एक मृदंग बजा के इधर छोड़ के चला गया है और पूरा दिन मृदंग उधर ही पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं भक्त लोग, लेकिन हमें को ये नहीं कि चलो इसको उठा के इधर रखें, यहाँ कहीं लिखा था ना मृदंग की जगह, तो उसको उधर रखे जहाँ मृदंग रखते हैं। क्यों? अरे भाई मेरा सेवा थोड़ी ना है, जिसने बजाया उससे पूछो जिसने। और ऐसे हमारे अंदर भाव आ सकता है, तो ये क्या है, एक अच्छे शिष्य नहीं बन सकते हैं। अच्छा शिष्य क्या कर होता है, उसको बोलना नहीं पड़ता। ये रामायण में भी आगे एक जगह लिखते हैं महाराज, 3 प्रकार के जो शिष्य होते हैं। एक जो होता है कि उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो समझ लेता है मूड गुरु का और उस अनुसार अपनी बुद्धि लगा के
वो उस कार्य को पूर्ण करता है, जबकि उससे थोड़ा वो एक्स्ट्रा ही कर देता है, जो बोलना भी नहीं पड़ा। दूसरा होता है कि जितना बोला उतना कर देता है, हाँ ये करो, ये कर दिया तो हो गया मेरा काम। तो ये सेकंड क्लास एक शिष्य का वो है, गुण है। तीसरा है जिसको बोलो कुछ तो वो आधा करता है आधा नहीं करता है। इसको मैंने ये बोला था करने के लिए, लेकिन आधे बर्तन छोड़ दिए फिर चला गया, बोला मेरा हो गया समय, मेरे को जाना है, या कुछ भी ऐसे कर, आधा करता है आधा नहीं करता है। और चौथा जो है एकदम निम्न क्लास का, सुनता ही नहीं है बोलने पर, वो बार बार उसको बोलना पड़ता है फिर भी वो नहीं करता है। तो इस प्रकार ये मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ एग्जैक्टली, तो इसमें आता है रामायण में। तो इस तरह जो सेवा भाव जो है हमारा, वो टॉप क्लास होना चाहिए एज ए शिष्य, वो बहुत बड़ा लक्षण है शिष्य होने का। लेकिन यदि हम हर समय इंतजार करते रहें चीज़ों का और खुद से इनिशिएटिव ना लें, तो हम उस लेवल के उच्च शिष्य नहीं बन सकते। तो बहुत आवश्यक है कि हमारा ये जो सेवा, साधु सेवी भाव, वैष्णवों की सेवा करना, कितने जन्मों के बाद हमें एक अवसर मिला है कि वैष्णव का संग मिला है, और उसमें भी हम उनका सेवा करने की बजाय निंदा करते हैं, है कि नहीं? हमारे समाज में हम देखते हैं वैष्णव में हम कितनी निंदा करते हैं, लेकिन हम उनके निंदा करते करते लोगों के अच्छे गुण देखना ही भूल जाते हैं। हर समय वो अवगुण ही दिखाई देते हैं, जबकि अपने नहीं दिखाई देते। तो इसीलिए इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि वैष्णव की सेवा कर, एक नीच दास की तरह। स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में तो एक दास से भी नीच रहना पड़ता है, आचरण दासवान नीचो बोला गया है। तो लेकिन हर एक वैष्णव को ऐसा होना चाहिए, चाहे हमारी भौतिक उपलब्धि कितनी हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कैसे हम इसका दास बने, कैसे सेवा की अपॉर्चुनिटी मिले इसकी। हालांकि वैष्णव सेवा देते नहीं अपनी कि हाँ भाई लो इसको पूरी करो इसकी इच्छा, इसको मेरी सेवा करनी है, लो अपना कपड़े दे दो धोने उसको, नहीं। लेकिन हमें अंदर से बहुत इच्छा होनी चाहिए कैसे मैं सबकी सेवा कर पाऊँ, जिससे हमको अपने कंफर्ट से बाहर आना पड़े। तो इस शिष्य का सबसे बड़ा एक लक्षण होता है कि वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं होती। हमारे गुरु महाराज का एक लेक्चर है ना, माई ड्यूटी इज टू मेक यू अनकंफर्टेबल। क्यों? क्योंकि कंफर्ट और भक्ति एक साथ नहीं चल सकती। एक कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन और भक्तिमय जीवन यदि कोई एक साथ चलाने की कोशिश कर रहा है तो कभी भक्ति ठीक से नहीं कर पाएगा, ना तो आरामदायक जीवन ठीक से जी पाएगा, ना भक्ति कर पाएगा, हमेशा द्वंद्व में रहेगा, हमेशा कंफ्यूज रहेगा, ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा, वो कहीं आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, हो सकता है पीछे ही चला जाए, निकल ही जाए। तो यदि हमको एक अच्छा शिष्य बनना है तो ये आराम से निकलना पड़ेगा, और आराम से निकलने का बहुत अच्छा एक तरीका है साधु सेवा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत। कई बार आप हो सकता है लेट हो जाए, रात को 12-1 बज जाए, फिर भी अगले दिन करना पड़े सेवा, स्पेशली फेस्टिवल्स में, तो उसमें हम देख सकते हैं। लेकिन वो इंटेंसिटी पूरा जब तक हम जीवित है तब तक वो इंटेंसिटी रहनी चाहिए, जब तक ये शरीर है हमारा, वो इंटेंसिटी। तो उस इंटेंसिटी के साथ जो साधु सेवा करेगा वो एक सदचरित्र शिष्य बनेगा। तो ये दो हमने देखा। तीसरा है समुचित चरित्र। He is marked for his righteous conduct and strict adherence to वर्णाश्रम धर्मम, स्ववर्णाश्रम नियत आचरपरण। तो एक अच्छा शिष्य वो हो सकता है जिसको अपनी ड्यूटीज अच्छे से पता है कि नहीं? यदि हमारी ड्यूटी हमें क्लियर हो गई तो हम सेवा अच्छे से कर सकते हैं, कि नहीं? यह है तुम्हारी ड्यूटी तो हम कर देंगे। तो यदि हमें हमारी ड्यूटी के प्रति कंफ्यूजन है तो हम उस ड्यूटी को करेंगे कैसे? तो इसीलिए ये जो वर्णाश्रम का टॉपिक वेदांत देशिका जी लेके आए हैं स्वधर्म का, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक शिष्य के लिए कि अच्छे से भली भांति अपना स्वधर्म पता हो, जो कि आजकल वैष्णव सोसाइटी में हम देखते हैं कि इसकी भर्त्सना की जाती है।
या तो चर्चा ही नहीं की जाती वर्णाश्रम की, या तो इसकी भर्त्सना की जाती है। और इसके एकदम विपरीत हो रहा है कि वैष्णव सब चीजों से परे है, वैष्णव वर्णाश्रम से परे है। वो भक्ति के प्लेटफॉर्म है, और उस भक्ति के प्लेटफॉर्म पे हमको ये सब छोटी चीजें, स्वधर्म, ये सब रोल्स, ड्यूटीज, वो सब नहीं लानी चाहिए। वो एक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म होता है, ट्रांसेंडेंस होता है। तो उसके बियॉन्ड जाना है हमें। ये सब में नहीं रहना है, धर्म क्या है अपना। तो इसलिए हम देख रहे हैं, जितना भी आप लोग सुनते होंगे इस्कॉन में क्या क्या चल रहा है, हम सब डिस्कस करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत हटके बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों? उसका मेन कारण है जो प्रभुपाद की जो मेन शिक्षा है कि 50% ऑफ माय वर्क इज रिमेनिंग, वर्णाश्रम धर्म की जो स्थापना, उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए किसी को सेल्फ ड्यूटी नहीं पता है, अपनी ड्यूटीज़ के प्रति लोग सजग नहीं हैं और किसी और की ड्यूटी करना चाहते हैं। और भागवतम में, भगवद गीता में लिखा है कि अपनी ड्यूटी यदि आप ठीक से नहीं कर रहे हैं तो भी वो बेहतर है 1000 गुना किसी और की ड्यूटी आप 100% ठीक से कर रहे हैं, अपना ड्यूटी छोड़ के। तो ये रामायण का एक बहुत बड़ा एक फैक्टर था कि राम को एक शूद्र का वध करना पड़ा। रामायण के अंत में हम देखते हैं, ये स्टोरी आती है और कि कैसे राम राज्य में कुछ गलत चीजें होती ही नहीं थी। जैसे कल मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारी चीजें नहीं होती थी, उसमें एक आता है कि वैधव्य, वैधव्य मतलब कोई विधवा नहीं होते थे राम राज्य में। तो उसी प्रकार अनेक अनेक चीजों में एक चीज ये है कि राम राज्य में ऐसा नहीं हो सकता कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाए, जो कि आजकल बहुत नॉर्मल। तो ऐसा हो गया एक ब्राह्मण के साथ, उन्होंने आके कंप्लेंट किया तो राम जी स्वयं निकल गए ढूंढने की, जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है, नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता इधर, मतलब कहीं ना पूरे राज्य में ढूंढ रहे हैं क्या हो रहा है। तब जाके एक जगह जंगल में देखा कि एक जो शूद्र प्रवृत्ति वाला व्यक्ति जो है वो पेड़ पे उल्टा टंग के तपस्या कर रहा था। मतलब जो उसकी वृत्ति नहीं है वो अपना काम छोड़ के वो किसी और की कार्य को इमिटेट करने का कोशिश कर रहा है, और इस एक भूल के कारण इतना बड़ा आपदा, यानी एक पिता का पुत्र उससे पहले मर गया। तुरंत एक्शन लिया राम ने, तलवार निकाली, उसका सिर काट दिया। नहीं तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रवृत्ति वाले और लोगों को पैदा करेगा। लोग ऐसे कई कारण हैं जिसके कारण लोग भर्त्सना करते हैं राम की, लेकिन हम देख सकते हैं कि स्वधर्म के अभाव के कारण ही समाज में अराजकता है, या जो भी हम देख रहे हैं उथल पुथल है हमारी सोसाइटी में या पूरे समाज में, केवल उसका बहुत बड़ा एक कारण है स्वधर्म का पालन ना होना। कल हम लोग आ रहे थे कार में कल्याण स्टेशन से, नहीं वो बोरीवली स्टेशन से इधर तक, और बहुत ही ट्रैफिक था, बहुत लेट हो गया। हमारी गाड़ी के आगे और एक गाड़ी आई, और हर गाड़ी के पीछे कुछ कुछ मैसेज लिखे होते हैं ना, ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे। तो उस गाड़ी के पीछे लिखा था मुलगी सीखली प्रगति झाली, मुलगी सीखली प्रगति झाली। तो बहुत ही मुश्किल मराठी नहीं है सब। मुलगी मतलब लड़की, राइट। सीखली मतलब यदि पढ़ लिख गई। तो प्रगति मतलब डेवलपमेंट, झाली मतलब मानो प्रगति हो गई। मुलगी सीखली प्रगति झाली। मेरे को उधर देख के हंसी आ रहा था, जैसे लोग लिखते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो ये सब हमारे प्रोपेगेंडा है आजकल का कि मुलगी सीखली प्रगति झाली। तो क्या प्रगति हुई? पढ़ लिख के सीख गई, क्या प्रगति हुई? प्रगति ये हुई कि वहाँ से आते समय अनेक अनेक बिल बोर्ड से, जिसमें अनेक अनेक प्रकार की मॉडल्स आधे आधे कपड़ों में अपने फोटो खिंचवा रही है। ये आजकल की सो कॉल्ड प्रगति है। ये प्रगति, जब व्यक्ति इंसान बन गया है और इंसान से वापस जानवर की तरह हो रहा है तो वो प्रगति नहीं, उसको अधोगति बोलते हैं। हम वापस जा रहे हैं कि नहीं जानवर के तरह? लिटरली तो जा ही रहे हैं, जैसे जानवर निर्वस्त्र होते हैं,
तो हमारा समाज भी निर्वस्त्रता को बहुत ही उसी तरफ जा रहा है। अच्छे खासे कपड़ों को भी फाड़ कर पहनना फैशन या फटे हुए पहनना फैशन। तो किस प्रगति की बात कर रहे हैं? ये महिलाओं की प्रगति, ये तो वो भगवद गीता 16:11 में वो प्रभुपाद लिखते हैं ना, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, वो जो श्लोक है उसमें महिलाओं को प्रगति के नाम पे किस प्रकार उनका शोषण होता है। इस पर एक जो स्त्री है वो सोच रही है कि मैं अभी प्रगति कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है और मैं बहुत बड़ी नौकरी कर रही हूँ इस कंपनी में और बहुत मेरा पैकेज बहुत अच्छा है। तो कई मर्द मेरे नीचे काम करते हैं, मैं इनकी सुपरवाइज़र हूँ, कई मर्द मेरे नीचे काम करते हैं। तो ये है विमेन पावर, ये है सशक्तता, ये है प्रगति। क्योंकि मैं मुलगी पढ़ ली, मुलगी सीख ली, प्रगति झाली, तो ये प्रगति है। कितने सारे लोग उनका शोषण करेंगे और उनका जो स्वयं का पति है उससे ज़्यादा समय तो बाहर के लोगों के साथ गुजार रहे हैं। तो कैसे एक अच्छी फैमिलीज होंगी हमारे समाज में? आए दिन हम सुनते हैं ये उसने अपने हस्बैंड को लवर के साथ मिलके क्या था, ड्रम में डाल दिया और काट दिया, बॉईल कर दिया। सुनने में ही डर लगता है। तो ऐसी कई चीज़ और कुछ ना कुछ तो आती ही नहीं होंगी न्यूज़ में, ऐसे कितनी चीज़ें हो रही होंगी। तो कितना ये क्या प्रगति है? कभी हम सुनते थे ऐसी खतरनाक राक्षसों वाली चीज़ें। तो ये सो कॉल्ड प्रगति की स्वधर्म अपना पालन नहीं करेगी, उसके अगेंस्ट जाएगी, मर्दों की तरह काम करने का कोशिश करेगी, तो समाज में यही होगा। आज जो हम सुनते हैं रेप केसेस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो संस्था है वो भी इससे अछूता नहीं रह जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? क्योंकि यदि हम जैसा श्रील प्रभुपाद हमसे चाहते थे वैसा यदि हम ना करें तो इस संस्था में भी ये सब चीज़ें देखने के लिए हम जीवित रहेंगे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है ऑलरेडी जो चल रहा है। तो इसीलिए शिष्य का एक बहुत बड़ा कर्तव्य क्या है कि वो अपने स्वधर्म को पहचाने। हालांकि पालन करना बहुत ही अंदर के लिए कष्टदायक हो, बहुत ही अंदर से कष्टदायक हो, लेकिन क्योंकि वो कष्ट सह के भी यदि स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो वो टॉप क्लास शिष्य बन सकते हैं। जैसे राम के चरित्र में, लक्ष्मण के चरित्र में हमने देखा कितना कष्ट था, है ना। 14 वर्ष का वनवास क्या बहुत ही सामान्य बात है, हमको तो पढ़ के शायद पता भी नहीं लगता हो कि कितने कष्ट थे। लेकिन एक वन में जाना, निर्जन वन में, तो बहुत कष्ट की बात है। सभी लोगों से दूर, कांटे होते थे उधर, कांटे पूरे, और राक्षस ये सब। और लक्ष्मण का तो और खतरनाक, अपने पूरी, राम का हम चलो बोल सकते, सीता भी थी उनके साथ, लक्ष्मण तो कोई नहीं उनके साथ, और इन दोनों की रक्षा भी करनी है, सोना नहीं है बिल्कुल भी। और भरत की उनसे भी खराब दशा कि मैं तो विलेन ही बन गया पूरा। वो सब मेरे को विलेन समझते हैं, और राम जी भी नहीं है, और मेरे को बोला ये राज्य संभालो, कैसे संभालूं मैं? तो लेकिन सबने स्वधर्म पालन किया। एक इधर से इधर हो जाते तो पूरा अव्यवस्था हो जाता। यदि राम करने से मना कर देते या भरत राज्य ले लेते तो, लेकिन उन्होंने, सीता जी यदि अपना पति धर्म का पालन नहीं करती, यदि सीता बोलती अरे तुम जाओ, मेरे को क्या करना, तुमको वनवास मिला, मेरे को थोड़ी ना मिला है, तुम जाओ भाई, मेरे को क्यों ले जाओ? राम ने तो ऐसे पूछा नहीं था सीता से, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लेते, सोचिए कि सीता तुम भी आओगी, और सीता ऐसा जवाब, आजकल के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, मॉडर्न रामायण, यदि कोई व्यक्ति को बोले तुम भिखारी रोड में जाके भीख मांगो तुम, तो वो पत्नी को बोलेगा कि तुम भी आ जाओ, आदि तो अर्ध नारीश्वर, क्या बोलते हैं, धर्मपत्नी, अर्धांगिनी, आदि तो तुम भी हो, आ जाओ दोनों मिलके। तो आजकल की मानेगी, आजकल की स्त्री, तो तुम जाओ भाई, मेरे को क्यों फंसा रहे हो? तो आप उसको छोड़ के ही किसी और के पास चली जाएगी।
जब तक पैसा है ठीक है, जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा खत्म, अरे मारो लाख भागो। तो हम सोच भी नहीं सकते उधर सीता इस प्रकार के बात बोल सकती थी कि वो तो आराम से रह सकती थी राज्य में, लेकिन वो पतिव्रता धर्म का पालन होता है कि हमने इनके साथ जीवन व्यतीत करने का प्रण लिया है, प्रॉमिस किया है, तो जो भी स्थिति हो, चाहे राजमहल की विलासिता हो या वन का वास हो, उसमें पति के साथ निभाना है। कोई और प्रश्न नहीं है, नो क्वेश्चन मेरे को ये मुश्किल होगी। राम ने बहुत तरीके से उनको बोला था कि वो डर लगे उनको, अरे वन में ये राक्षस होगा, वन में जानवर होंगे, ये हो, नो प्रॉब्लम। उल्टा गुस्सा हो गई, मेरे को नहीं ले जा रहा। तो इस प्रकार का जो स्वधर्म पे टिका रहना है, उसको जो शिष्य पालन करता है वो बहुत आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि अपना अपना जो स्वधर्म है, जो एक शरीर के कारण एक प्रकार का धर्म हमें पालन करना पड़ता है, जैसे मिला है उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर मिल गया है तो उसके अनुरूप, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हम अच्छा ना लगे, लेकिन उसके अनुरूप गुरु के आदेश का पालन करते हुए यदि कोई अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भक्ति करते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और इसलिए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। पर्सनल, जैसे मैंने बोला, कंफर्ट, हमें पर्सनल कंफर्ट नहीं देखना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यदि कोई बहुत अच्छे से भक्ति करें तो क्या होगा, हम एक आदर्श चरित्र शिष्य बन सकते हैं। चौथा जो एक गुण आता है शिष्य में, वो है तत्वबोध अभिलाषी। He has the eagerness to learn about the true meaning of तत्वहित पुरुषार्थम्स। एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर आलस, ताहा होइते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस। ये बहुत समय हमें लगता है कि इतना सारा फिलॉसफी, इतना सारा सिद्धांत के पीछे क्यों जाना, मैं हूँ, गुरु है, हरे कृष्ण महामंत्र है, भक्ति है, चलो वही काफ़ी है, सिद्धांत जानना आवश्यक नहीं। लेकिन इस श्लोक के अनुसार जो सिद्धांत को जानते हुए भक्ति करते हैं, तो ऐसे शिष्य क्या होते हैं, उनकी गुरु से और कृष्ण के प्रति निष्ठा और बढ़ जाती है। और जो सिद्धांत का पालन ना करके केवल एक भावुकता के स्तर पर एक शिष्य बने रहते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि वो भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते, और कोई छोटी मोटी सिचुएशन भक्ति की है उनको डगमगा देती है, क्योंकि उनकी कोमल श्रद्धा होती है, और वो सिचुएशन उनकी श्रद्धा को विनष्ट करके वो गुरु को छोड़ देते हैं, फिर भक्ति छोड़ देते हैं पूरी। श्रील प्रभुपाद ने बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बोली थी कि फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज ड्राई स्पेकुलेशन, एंड रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। इसका अर्थ है कि कोई एक तत्व ज्ञान है, दर्शन है, अगर उसमें भक्ति नहीं है, भाव नहीं है, तो वो एक ड्राई स्पेकुलेशन, रुकी सुखी एक मन गढ़ंत कोई स्पेकुलेशन है, जो हम मायावाद में हम देखते हैं। कल हम चर्चा कर रहे थे मायावादियों के विषय में, तो हमारे गुरु महाराज जो हैं वो हमें बोल दे कि जो मैं एक बार प्रश्न किया था उनसे कि जब हम मायावादियों से चर्चा करते हैं तो उनको उधर ही काट दिया वो प्रश्न, कि उन्होंने बोला कि वास्तविक मायावादियों से हम प्रश्न डिबेट ही नहीं कर सकते, 1 सेकंड में हार जाएंगे। और यदि कोई एकदम ऑथेंटिक मायावादी हमारे पास आया तो उससे हम डिबेट ही नहीं कर पाएंगे अगर हमारा शास्त्रिक बेसिस अच्छा नहीं है। इस तरह अभी जो सिचुएशन है, वो लोग ये शास्त्र, वो सब, ये उपनिषद सब कोट करके हमको उधर ही हरा देंगे, कोई हम डिबेट ही नहीं कर सकते। तो हालांकि उनके पास फिलॉसफी है, लेकिन क्योंकि उनके पास भक्ति नहीं है, इसलिए वो केवल उनकी मन गढ़ंत कल्पनाएं हैं, जिससे उनको कोई रस प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार एक चूसे हुए जो गन्ने का है, उसमें हम और रस प्राप्त करने की कोशिश करें तो उसमें कुछ रस है ही कहाँ से प्राप्त हो। या अजगल न्याय बोलते हैं हम, एक प्रकार का न्याय है अजगल। जैसे कोई अज मतलब
बकरी होती है उनके इधर ऐसे गले के इधर एक ऐसे लटकता रहता है। तो अगर हम सोचे कि इससे हमें अभी थन है, जैसे थन है, तो इससे दूध प्राप्त होगा, तो कितना भी हम कोशिश कर लें उससे हमको दूध प्राप्त नहीं होगा। तो वैसे ही मायावादियों के पास बहुत बड़ी फिलॉसफीज हैं, सब कुछ सिद्धांत हैं, लेकिन क्योंकि भक्ति का अभाव है, डिवोशन का भाव है, भाव का भाव है, तो इसीलिए वो केवल ड्राई स्पेकुलेशन ही रहेंगे। उससे एक जो भक्त है वो कभी आकृष्ट नहीं होगा। और उसी तरह रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज मेयर सेंटिमेंटलिज्म, कि यदि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति सब कुछ कर रहे हैं, गुरु भी हमारे, लेकिन गुरु कौन है, उनको किस तरह हम प्रसन्न करें, और प्रसन्न करें भी कि ना करें, कि अपने आप चलो कर रहे हैं वो प्रसन्न हो ही जाएंगे। और भक्ति किस तरह करें, भक्ति क्यों करनी चाहिए, कृष्ण की करनी चाहिए, कैसे प्रसन्न करें, वो प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं, मैं एडवांस कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो इस प्रकार के कई प्रकार के सैद्धांतिक प्रश्नों के बिना यदि हम भक्तिमय जीवन में हैं, केवल हम जप कर से खुश हैं, केवल हम प्रसाद ले रहे हैं उससे खुश हैं, केवल हम थोड़ी सेवा कर दे रहे हैं उससे खुश हैं, तो फिर ये एक भावुक स्तर की भक्ति हम लोग कर रहे हैं, सेंटिमेंटल भक्ति, जिसका भक्ति में जीवन में कोई काम नहीं। सेंटिमेंटल भक्ति, कभी कभी भक्ति में हमें रोना आ जाता है, आंसू निकल आते हैं, है ना। हाँ, अरे महाराज, ओ गुरु महाराज, ये वो गुरु महाराज को देखते कई लोग प्रणाम करके एकदम बुरी तरह प्रणाम करते हैं, ये महाराज, वो महाराज, ये महाराज, सब कुछ। लेकिन जब पालन करने की बात आती है, सेवाओं की बात आती है, प्रैक्टिकल चीज़ों की बात आती है, तो थोड़ा पीछे हो जाते हैं। नहीं, अरे मैं नहीं कर सकता, अरे मेरे को ये समस्या है, अरे मेरे को वो समस्या है, ये वो, तब हम अपने आप को पीछे कर लेते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में वो गुरु, वो कृष्णा, ये वो भक्ति नहीं होती। कई लोग पढ़ने में इतने शिथिल होते हैं। हमारे गुरु महाराज हमसे चाहते हैं कि दीक्षा से पूर्व हम भागवतम के 2 स्कंद पढ़ें, तो वो एक क्राइटेरिया है, बहुत जगह हम देखते नहीं होता है। तो वो क्यों चाहते हैं पढ़े? दीक्षा के लिए तो किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि भागवतम के लिए भागवतम के 2 स्कंद पढ़ने हैं, ऐसे किसी शास्त्र में आता। तो गुरु वो क्यों स्थापित करते हैं? गुरु इसलिए स्थापित करते हैं क्योंकि वे चाहते हैं कि चलो इसी बहाने ये पढ़ना तो शुरू करें। और बहुत लोग फिर मेल करते हैं महाराज को, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपने ये शर्त रखी थी, क्योंकि मैं तो पहले बुक खोल के देखता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि दीक्षा चाहिए थी तो मेरे को भागवतम खोलनी पड़ी। और अब जैसे मैंने खोली है भागवतम पढ़ना शुरू किया, मैं बंद नहीं कर पा रहा। मैंने 3, 4 बार, 5 बार पढ़ ली और फिर से पढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे। तो महाराज साधुगण यही चाहते हैं कि ये जो जिसको पढ़ने में रुचि नहीं है, भक्ति में कुछ रुचि नहीं है, एटलीस्ट स्टार्ट तो करे, तो वो रुचि अपने आप आएगी। तो उसी तरह हम लोग देखते हैं कि कई बार रिलैक्स होते हैं हम पढ़ने में, या तो एक बार दीक्षा हो गई भक्त भूल ही जाते हैं, वो 2 घंटों किसी तरह फटाफट कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, और दीक्षा के बाद वो 2 के आगे ही नहीं बढ़े, उधर ही छूट गई। या तो हम क्यों इतने तत्व ज्ञान को समझें, क्यों हम क्रिएशन के विषय में समझें, क्यों हम वर्णाश्रम के विषय में समझें, हाँ? और जो गुरु की वाणी है उसको हम किस प्रकार अपने जीवन में, ये सब क्यों करना है? आराम से हम चैंटिंग इज एनफ, जब चैंट एंड बी हैप्पी, जब काफ़ी है। थोड़ी बहुत सेवाएं कर ले रहे हैं, थोड़ी बहुत ये कर ले रहे हैं, थोड़ी बहुत वो कर ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एक प्रकार की भक्ति, उसका नाम है जैसे तैसे भक्ति, समहाउ और अदर। तो हमें एक जो सच्चरित्र शिष्य होता है वो जैसे तैसे समहाउ तरह की भक्ति से उसको एक स्टेप ऊपर लेना। और एक स्टेप ऊपर कब लेगा? जब उसका फुल तत्व ज्ञान बहुत स्ट्रांग होगा, फिलॉसफी बहुत स्ट्रांग होगी। उस फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ जब कोई एक व्यक्ति भक्ति करता है तो हर समय उसके मन में यही रहता है कि अभी मैं और ऐसा क्या करूं कि मैं गुरु महाराज को प्रसन्न कर पाऊँ, और ऐसा क्या स्टेप लूँ, ये सब तो कर ही रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ। तो वो भक्त क्या है, अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ लेने लग जाता है, अपने आप को और तपाने लगता है और प्रेशर में डालता है।
जैसे कई कई चीज़ें पकाने से बहुत अच्छा बनती हैं, जैसे सोना है, वो एक कच्चा घड़ा है, हम देखते हैं वो जो पॉटर होता है उसको आग में डालता है, तो उसको कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं डालता है, उसको पता है कष्ट होगा लेकिन जो एंड रिजल्ट आएगा वो एकदम बहुत सुंदर सा एक पॉट होगा। तो उसी तरह गुरु जो है वो शिष्य को क्यों प्रेशराइज कर, क्यों उन्होंने वो लेक्चर दिया कि माई ड्यूटी इज टू मेक यू अनकंफर्टेबल। क्या वो हिटलर जैसा ऐसे है कि किसी को मजा आता है लोगों को डिस्कम्फर्ट देने में? हिटलर ऐसा व्यक्ति था ना कि लोगों को कष्ट में देखता था तो आनंद आता था उसे। जैसे हिटलर तो बहुत पास का एग्जाम्पल हो गया। जैसे मृगारी हुआ, मृगारी, तो मृगारी क्या है कि वो लोग जानवरों को ऐसे काट के छोड़ देता था आधा, और वो ऐसे ऐसे तड़पते थे, तो वो तड़पता देख के उसको बहुत आनंद, हंसता था, बहुत आनंद होता था। तो वो गुरु मृगारी नहीं होते कि अपने शिष्यों को कष्ट में देख रहे हैं तो उसको इसलिए इसका जीवन इतना मैंने मुश्किल कर दिया है ताकि इसको कष्ट हो, मेरे को आनंद हो। तो वो गुरु, प्रामाणिक गुरु ऐसे नहीं होते। वो इसलिए हमारा जीवन दो भर कर देते हैं, इसलिए मुश्किल में मुश्किल क्यों डालते हैं, ताकि जितनी हमारी मुश्किल होती है उतना हमें भगवान और याद आता है, उतना हम और सरेंडर होते हैं, उतनी शरणागति और बढ़ती है। जितना कंफर्ट में देखिए कभी भी हम भगवान को याद ही नहीं करते, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, बुक्स नहीं जा रही है, पूरा दिन हो जाए, तो अल्टीमेटली एक गुरु महाराज क्या मेरी मदद करो, ये प्रभुपाद, बहुत हम सरेंडर हो जाते हैं सब मुश्किल में। तो इसीलिए गुरु प्रेशर देते हैं हमें और आग में डालते हैं, ताकि हम लोग और अच्छा होके निकले। तो इसलिए इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। लोग बोलते हैं भक्ति विकास महाराज बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ये है वो है, तो वो इसीलिए स्ट्रिक्ट हैं ताकि उनके भक्त लोग भी स्ट्रिक्ट बने, शिष्य लोग। तो इसीलिए इतनी वो जोर देते हैं इस बात पे, तत्व ज्ञान पे, कि हमें भक्ति करनी है, लेकिन तत्व ज्ञान को जान के करनी है, ताकि क्या है कि हमारी एक निष्ठ भक्ति हो कभी हिले डुले ना। नहीं तो बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में एक समस्या आती है तो वो हिल डुल जाते हैं भक्ति में और कुछ छोड़ के ही चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं होती तब क्या होता है हमारे साथ कि हालांकि हम भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉडीली अटैचमेंट है उसमें इतने सा भी फर्क नहीं पड़ता है। और उससे क्या होता है कि कुछ हो गया जिसने हमारी इस बॉडीली अटैचमेंट में ऑब्स्टिकल बन गया, तो फिर हमारा पूरा एकदम भक्ति ठीक से नहीं होती। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, या तो हमें व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हो गया, या तो कोई हमें छोड़ के चला गया, कोई प्रियजन, तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो या तो भक्ति के परिप्रेक्ष्य में उस भक्त ने मेरे को वो बोल दिया, या उसने मेरे को ये कर दिया, ये बोल दिया, वो हो गया, ये हो गया, तो वो चीज़ों से हम हमेशा माइंड क्या डिस्टर्ब हो जाता है। और इस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, धीरे धीरे जैसी तैसी भक्ति करते हैं, फिर कम होती जाती है, जो करते थे वो भी कम हो जाती है, और धीरे धीरे करना ही एकदम बंद हो जाता है। करना बंद हो जाता है, उसका और एक लेवल ऊपर क्या होता है कि हम एंटी हो जाते हैं भक्तों से। ऐसे बहुत देखने को मिलते हैं हमें, इवन गुरु महाराज के शिष्य एंटी हो जाते हैं। तो कारण यही है कि शुरुआत से ही शिष्य का कोई फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं था। तो इसीलिए तत्व ज्ञान को लेकर यदि हम भक्ति करें तो हमारी भक्ति टॉप मोस्ट, कोई हिलने स्थिर भक्ति होगी, व्यवसायत्मिका बुद्धि होगी, भक्ति होगी। तो इस तरह हम इसको समझना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हमने आज डिस्कस किए। सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह एक शिष्य को सद्बुद्धि होना चाहिए, मतलब अपनी बुद्धि अच्छी जगह लगानी चाहिए। और दूसरा, कैसा साधु सेवी होना चाहिए, सभी प्रकार के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। समुचित चरित्र, अपना स्वधर्म अच्छे से जानना चाहिए, वर्ण और आश्रम को समझते हुए। और चौथा,
फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग तत्वबोधशाली होना चाहिए, या अभिलाषी यहाँ लिखा, एटलीस्ट सीखने की अभिलाषा होनी चाहिए। तो बाकी और भी हैं क्वालिटीज़, अगले कुछ दिनों में सुबह के समय हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डिवोटीज़ के बीच में। हरे कृष्ण। तो कुछ क्वेश्चंस हैं किसी को, कुछ या कुछ बोलना चाहते हैं आज की कक्षा को लेकर, डिस्कस कर सकते हैं। नहीं, कोई प्रश्न? कोई प्रश्न तो लिख के भी रख सकते हैं, कल परसों ऐसे बाद में भी पूछ सकते हैं, और चर्निंग होने से और अच्छा से रिजल्ट्स आएगा। चलो, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रामनवमी महामहोत्सव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे